Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So dear student, myself Anil Adhikari, PGT Mathematics in DPS Lamachor, and today I am going to discuss about some question from the exercise 9.2. In my previous video lecture I have discussed till question number 12, and today I am going to start from question number 13. So be with me till the end of the video. Thank you. So beta, our question number 13 is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. Okay, this is our question number 13. So let's start. If the sum of n terms of AP, it means that we have given Sn. Okay, sum of n terms, it is given as 3n square plus 5n. 3n square plus 5n, it is given sum of n terms of AP. Okay, and its mth term is 164. Am is equal to 164 of same series. Okay, the sum of n terms and mth term both are of the same series. Okay, same AP, and find the value of m. So beta, we have to find out the value of m. We have to find out the value of m. So first we have given here the sum of n terms. So by the help of sum of n terms, we will find the nth term, means an, and with the help of an we will find first, second, third term, and then we will find the first term and common difference. Then we are going to apply this formula. Okay, so let's start. So dear student, here Sn is given as 3n square plus 5n. Okay, so what will be Sn minus 1? What will be sum of n minus 1 term? If sum of n terms is this, so sum of n minus 1 terms, replace n with n minus 1, so that we get sum of n minus 1 term. So what will you get? 3 times n minus 1 square plus 5 times n minus 1. Okay, so now we know that there is a formula for nth term. An is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, it means the nth term of any AP equal to sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. It means that if we subtract sum of n minus 1 term from sum of n term, then we get the nth term. Okay, this is the formula for finding the nth term. So now put the value of Sn and Sn minus 1 here, so that we get the value of nth term, that is 3n square plus 5n minus 3 times n minus 1 square plus 5 times n minus 1. Okay, now solve it. 3n square plus 5n minus 3 times, what is the formula of n minus 1 whole square? N square plus 1 minus 2n, and here 5n minus 5. Okay, so this will become 3n square plus 5n minus 3n square minus 3 and minus 3 to just 6, minus 6n and minus 1 plus 6n plus 5n minus 5. So 3n square minus 3n square got cancel out. Okay, and 5n plus 5n, that is 10n plus 6, 16n, and 5 3 is 8. 5n plus 6n plus 5, 5 5 10 6, 16n, and minus 3 minus 5 minus 8. Okay, this is an, means the nth term. Now for first term we will replace the value of n with 1. We get 16 into 1 minus 8, that is 16 minus 8 and 8. Second term a2, 16 into 2 minus 8, so 16 to the 32, 32 minus 8. Okay, so this will 24. A3 equal to 16 into 3 minus 8, that is 48 minus 8, that is 40. Now see the common difference. Okay, 24 minus 8 16, 40 minus 24
16. So what we get, the first term means a, the value of a is 8 and common difference is 6. Now put the value of a and d in mth term so that we find the value of m. So a plus m minus 1 into d equal to 164. So what is the value of a beta? The value of a first term is 8. So 8 plus m minus 1 into common difference 16 equal to 164. So m minus 1 into 16 equal to 164 minus 8. So m minus 1 into 16 equal to 164 minus 8, we got 156. Okay, so m minus 1 equal to 156 upon 16. तो 16 डिवाइड 156 16 से 360 कितनी बार कैंसिल होगा बेटा ये? 2 8 जा एंड 2 7 जा 14, 14 15, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 7 minus 6 1, 2 9 जा 18. ओके, एंड 4 डिवाइड 39, दैट इज 39 अपॉन 4. 36, 4 9 जा 36, 37 38 39, 30 आएगा एंड 34 7 जा 28. तो डेसिमल में क्यों आ रहा है? कहीं कोई मिस्टेक होगी क्या? सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए बी 3n स्क्वायर प्लस 5n. ओके, एम एट टर्म 164, 5 द वैल्यू ऑफ m. सो 164 एम एट टर्म है हमारे पास, है ना. एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, एस एन माइनस 1 3 टाइम n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम n माइनस 1. नाउ एस एन माइनस वन 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 टाइम n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम n माइनस 1. सो 3 टाइम n स्क्वायर प्लस n minus 2n plus 5n minus 5. So here we get minus 3n square minus 3 and plus 3 to just 6n. Okay, minus 5n. ओके बेटा यहाँ ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 5n. ओके, माइनस 5n ये प्लस 5 होगा, ये है ना. माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे मिस्टेक होगी बेटा. तभी डेसिमल में आ रहा है आंसर आपका ना. ओके, तो इसको फिर से लिख लेते हैं बेटा, ठीक है. सो 3 टाइम n स्क्वायर प्लस 5n, ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6n. अगेन माइनस प्लस माइनस 5n एंड माइनस माइनस प्लस 5. ओके, नाउ सी 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, 5n माइनस 5n कैंसिल आउट. ओके, और कुछ बचा. सो इधर the left is 6n minus 3 plus 5, minus 3 plus 5 that is 5 minus 3, केवल 2 बचेगा, ठीक है ना. 5 minus 3 2 and 6n. So this is our an. Now find a1, that is the first term. So 6 into 1 plus 2, that is 8. a2, replace n by 2, 6 into 2 plus 2, 6 2 is 12, 12 plus 2 14. a3, 6 into 3 plus 2 20. Okay, 3 terms are much because we need to find the common difference. Okay, so 14 minus 8 6, 20 minus 14 6. So this is the common difference. Okay, this is the first term. Now here am equal to a plus m minus 1 into d, which is given as 164. Now substitute the value of a and d here. The value of a is 8 and the value of d is 6. Okay, the value of d is 6. So 8 plus m minus 1 into 6 is equal to 164. 6 time m minus 1 equal to 164 upon 164 minus 8. So what we get? We get here 156, है ना. 6 time m minus 1. So m minus 1 is equal to 156 divided by 6. 6 2 is 12. 13 14 15 3 36, 6 6 is 36. So m minus 1 is equal to 26. The value of m is equal to 26 plus 1, that is 27. Okay, you can also cross check the value is true or not, because find करो m at term. So am is equal to कितना, a plus m minus 1 into d.
value of A is 8 plus m minus 1, 27 minus 1 that is 26, value of D is 6. So 8 plus 6 6 are 36, 3 carry, 6 2 are 12 और 3 15, 156 plus 8 164. ठीक है, यही हमें दिया था 164. तो यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP. तो हमें करना क्या है, हमें कोई भी 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 एंड 26. क्वेश्चन नंबर 14. बिटवीन 8 एंड 26 वी हैव टू इंसर्ट एनी 5 नंबर्स. तो लेट अस सपोज द 5 नंबर्स आर A1, A2, A3, A4 and A5. Okay, such that the resulting sequence are in AP. Okay, so we have to find out these 5 numbers. So listen beta, after including 5 numbers, total number of terms here are 5 plus 6 plus 7. Okay, and the 26th number, 26 is the 7th number. So we can write it as the first term is 8 and A7. A7 means first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th. So 7 term is 26. Now we easily find what is the value of A7 by the formula A plus 7 minus 1 into D is equal to 26. Now substitute the value of A here, which is first term 8 plus 7 minus 1 that is 6. A plus 6D is equal to 26. Okay, 8 plus 6D is equal to 26. 5 नंबर डालने थे. ठीक है, किसके किसके बीच में, आपका 8 और 26, 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने थे. 5 नंबर इंसर्ट कर दिए हमने, A1, A2, A3, A4 एंड A5. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 5, 8, 6 प्लस 7. सो 7 टर्म आपका 26 है. तो A7 इज इक्वल टू 27, दैट इज A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 27. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A8 हियर. तो 8 प्लस 6D इज इक्वल टू 26. ठीक है, अब कितना हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8. तो 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8 दैट इज 18. Now the value of D is 18 divided by 6. 6 3 is 18, means the common difference is 3. Now common difference is 3 and first term is 8. Now easily you can find A1, A2, A3, A4 and A5. So what is A1 beta? A1 equal to A plus D. A2 is equal to, A2 की पोजीशन कौन सी है, थर्ड, so A plus 2D. A3 is equal to, what is the value of A3? A3 की पोजीशन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, so A plus 3D. A4 A plus 4D. A5 A plus 5D. Now substitute the value of A and D here and get all 5 numbers. So the very first is A plus D, that is 3 plus 8. Second A plus, value of A 8 है, हाँ, 8 plus 3, 8 plus 3. And the second is A plus 2D, that is 8 plus 2 into 3, 3 2 is 6 plus 8, 14. Third 8 plus 3 into 3, so 8 plus 3 3 is 6. ठीक है, सॉरी 3 3 is 9 होगा यार. सो ये हो जाएगा 8 प्लस 17. ओके, फिर नेक्स्ट 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3. तो 8 प्लस 12 दैट इज 20. ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 8 प्लस 15 दैट इज 23. सो दीज आर 5 टर्म्स विच आर 11, 14, 17, 20 एंड 23. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15. इफ an प्लस बी एन अपॉन an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b. क्वेश्चन नंबर 15. a और b के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है विच इज a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन
a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. Then find the value of n. We have to find out the value of n. तो बेटा क्वेश्चन को समझेंगे. Here this amount is the arithmetic mean of a and b. Okay, so since we know that arithmetic mean between a and b is a plus b upon 2. हम जानते हैं कोई भी दो नंबर्स अगर हमें गिवन है then the arithmetic mean of a and b is a plus b by 2. But here we have given that the arithmetic mean of a and b is this. So now we compare, we put a plus b by 2 equal to a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. Then we will find the value of n. Okay, so a plus b divided by 2 equal to a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. Now beta cross multiply it. So we get a plus b multiply with a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1, and here 2 times a to the power n plus b to the power n. Now calculate. So a into a to the power n minus 1, next plus a into b to the power n minus 1 plus b into a to the power n minus 1 plus b into b to the power n minus 1 equal to 2 times a to the power n plus 2 times b to the power n. Now see beta, if base is equal, okay, this is law of exponent. What is law of exponent? If base is equal then power must be added, है ना. अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं. सो ऑन अप्लाइंग हियर दिस कंडीशन वी गेट a टू द पावर n हियर, ठीक है, प्लस a टाइम b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टाइम a टू द पावर n माइनस 1, एंड हियर b की पावर कितनी है 1. सो बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट. वी गेट हियर b टू द पावर n इक्वल टू 2 टाइम a टू द पावर n प्लस 2 टाइम b टू द पावर n. सो हियर a इंटू b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a to the power n minus 1 equal to both term, take both term on right hand side, twice a to the power n plus twice b to the power n minus a to the power n minus b to the power n, है ना. ये दोनों टर्म को कहाँ ले जाएंगे बेटा, राइट हैंड साइड में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो व्हाट विल गेट, वी गेट a b to the power n minus 1 प्लस b a to the power n minus 1 इक्वल टू a to the power n, ठीक है, प्लस b to the power n. नाउ b टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर n एक साथ रखेंगे, a टू दी पावर n और a टू दी पावर n माइनस वाले टर्म एक साथ. सो a इंटू b टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस, टेकिंग दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड वी गेट b टाइम a टू दी पावर n माइनस 1. अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसा होता, सपोज करिए a क्यूब माइनस a टू दी पावर 4, तो हम कॉमन क्या लेते हैं इन दोनों में, कम वाली पावर को कॉमन ले लेते हैं. कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है. अगर हमारे पास इस टाइप का कोई कोफिशिएंट दिया हो कहीं पे, तो हम कॉमन क्या लेंगे, कम वाले पावर को लेंगे कॉमन. सो a क्यूब कॉमन लेंगे, 1 माइनस a बचता है अंदर. तो यही कंडीशन यहाँ पे भी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. n माइनस 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी n इज ग्रेटर देन n माइनस 1. सो व्हाट विल वी गेट कॉमन, b टू दी पावर n माइनस 1, है ना. ये अमाउंट हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा मुझे a और यहाँ बचेगा केवल b, बिकॉज n माइनस 1 पावर बाहर चले गए हैं. After taking n minus 1 power बाहर, what we get in we get only b. Similarly यहाँ पे right hand side में a to the power n minus 1 बाहर, so what will we get here, a, and what will we get here, b. So this amount got cancel out. Okay, now dividing both side, पहले तो लिख लेते हैं इसको, b to the power n minus 1 is equal to a to the power n minus 1. Now dividing both side by b to the power n minus 1, तो इधर बचेगा बेटा 1, इधर बचेगा a अपॉन b पावर n माइनस 1. क्या किया हमने यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड बाई b टू दी पावर n माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे कैंसिल होके 1 बचेगा, यहाँ अपॉन b पावर n माइनस 1. नाउ वी कैन राइट वन एज a अपॉन b होल पावर 0 एंड हियर a अपॉन b होल पावर n माइनस 1, है ना. बिकॉज if exponent of any number is 0, then the value of the number is 1, ठीक है. Now comparing both sides, since there is equality, so on comparing both sides we get n minus 1 is equal to 0. What will you get, n minus 1 is equal to 0, that is n is equal to 1.
ठीक है. सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question number 16. Between A1 and 31, m numbers have been inserted. Okay. Question number 16. Between 1 and 31, between 1 and 31, m numbers have been inserted. So suppose the first number is A1, A2, A3 and so on. How many numbers? M numbers have been inserted between 1 and 31. तो m नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए इनके बीच में. ओके. इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP. तो ये सीक्वेंस जो है ये किस में? AP में. ओके. एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस वन नंबर्स इज 5/n. रेशियो ऑफ सेवेंथ और m माइनस वनथ, ठीक है, ये कितना दिया हुआ हमें? 5:9. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. So find the value of m. This is our question beta. ठीक है. We have given here there are m numbers between 1 and 31 so that the resulting sequence is in AP. ठीक है. तो वो हमने m numbers ले लिए कुछ इस तरीके से. And second thing we have given is the ratio of seventh and m minus 1th term is 5:9. Now we need to find the value of m. Okay. Now see here beta, there are m term in between 1 and 31. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म आर m+2. ठीक है. m टर्म्स तो ये हो गए, बाकी 1 and 31 दो और ऐड कर देंगे m में, तो टोटल कितने टर्म हो गए? m+2. एंड पोजीशन जो 31 की होगी वो कौन सी हो जाएगी? m+2 टर्म, है ना. 1 पहला ये हो गया, उसके बाद m नंबर्स ये हो गए और उसके बाद एक टर्म ये है. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा? m+2, है ना. m टर्म ये हो जाएंगे और दो ये. एंड द पोजीशन ऑफ 31 इज m+2 टर्म, ये हमारे पास है 31. सो बेटा अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ an हियर. सो m+2 टर्म क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 31. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a. द फर्स्ट टर्म इज 1. सो 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा m+1 इंटू डी, है ना. d मुझे पता है, d पता नहीं है. सो d इक्वल टू 31. फ्रॉम हियर वी गेट m+1 टाइम d इक्वल टू 30, है ना. यानी कि m+1 इज इक्वल टू 30/d. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और कुछ तो मिल नहीं सकता यहाँ से, है ना. अच्छा, और कुछ हो सकता है यहाँ पे? सोचिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच हैव गिवन एज A7 एंड AM-1. इन दोनों का रेशियो दिया मुझे 5:9. सो अप्लाई A7/AM-1. यही दिया ना, A7 अपॉन द रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड m-1. यस. सो व्हाट इज A7 बेटा? a + 6d. एंड व्हाट इज AM-1? m-1 टर्म a + m-1 एक कम करेंगे ना, जैसे 7 - 1 d हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो m-1 करेंगे कितना मिलेगा? m-2d. Okay, and this amount is given 5:9. Now substitute the value of a here which is 1. ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. a इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 1. सो दिस इज बिकम 1 + 6d डिवाइडेड बाय 1 + m-2 इंटू d इक्वल टू 5/9. नाउ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 9 + 9 6 54d एंड हियर 5 1 5 प्लस 5d विद इन ब्रैकेट m-2, है ना. इतना हमारा आ गया है. अब हमारे पास m+1 की वैल्यू है 30/d. तो इसको यूज कर सकते हैं क्या हम? चलिए देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं. ठीक है. तो हो जाएगा हमारा 9 + 54d इक्वल टू 5 + 5 टाइम md माइनस 5 2 10. ओके ओके बेटा, यहाँ पे ना इसकी md की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है ना. मल्टीप्लाई d, तो हमें मिलेगा यहाँ md + d इज इक्वल टू 30. सो दैट md कितना मिल जाएगा? द वैल्यू ऑफ md इक्वल टू 30 - d.
ठीक है, इसको ले लीजिए फर्स्ट। नाउ वैल्यू ऑफ एम डी कहाँ पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो मुझे मिलेगा 9 + 54D इक्वल टू 5 + 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम डी? 30 - D, 30 - D - 10। बट अब इस इक्वेशन को करनी पड़ेगी हमें सॉल्व। ओके, सो 9 + 54D इक्वल टू 5 + 5 × 30, 5 × 3 = 15, 150 - 5D and -10. Now solve this equation. 9 + 54 times D equal to 5, 150 - 10, that is 140, 140 + 5, that is 145, and -5D. So this amount goes in right side. So 54D and plus 5D equal to 145 and -9. So 54 + 5, that is 59, और ये कितना हो जाएगा? 149 - 9, that is 140। ठीक है, 145 एक्चुअली है, हाँ 145 - 9, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 145 - 9, दैट इज 136, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बेटा? द वैल्यू ऑफ डी इज 136 डिवाइड बाई 59। कैंसिल हो गए 10, 59 2 नंबर 18 3 59 4 जा देखें, चेक करें। 236। सो द वैल्यू ऑफ डी कुछ अटपटी जैसी आ रही बेटा, डी की वैल्यू 59 2 जा 6, 59 2 जा 2 नंबर 118, 3 टाइम करेंगे 3 नंबर 27, 177, और कैंसिल किसी से हो नहीं रहा ये, है ना। तो बेटा डी की वैल्यू को यही रखें, फिर 136/59। फिर कहीं मिस्टेक कर दी क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted, insert कर लिए m numbers in such a way that the resulting sequences in AP and the ratio of 7th and m-1th 7th and m-1th term is 5:9। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे m+2, सो m+2 टर्म हो गया 31, सो a + m+2 - 1 × d = 31, 1 + m+2 - 1, इट मीन्स m+1, ठीक है ना, एक कम हो जाएगा। सो md + d is equal to 31 - 1, that is 30। सही है बिल्कुल। a7 a + 6d am-1 a + m-2 × d 519, 1 + 60/1 + m-2d 519, so 9 1 9, 154d equal to 5 1 5 plus 5 times d within bracket m-2, 9 + 54d is equal to 5 plus 5 md minus 5 2 10, 9 + 54d is equal to 5 plus, अब what is the value of md? Value of md is 30 - d, so substitute here 30 - d, तो ये हो जाएगा 5 3 = 15 और -5d, तो 5 + 15 - 5d और -10 एज यूजुअल यार, है ना। 5d, अरे हर बारी मिस्टेक हो जा रही है बेटा। ये 5d × m 5md, 5d × 2 -10d होगा बेटा, यहाँ पे -10d होगा ये, शिट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, 9 + 54d, 9 + 54 टाइम d इक्वल टू 5 + 150, 5 + 150 -5d -10d, -5d -10d, है ना, -5d -10d, स्टिल देयर इज़ नो मिस्टेक ना। 30 - d रखा है इसकी जगह, मतलब -5d और -10d, ठीक है। अब देखिए इसको, तो 9 + 54 टाइम d इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे बेटा, ये बता देंगे कितना ऐड हो गए, 155 माइनस दिस इज 15d, ये इधर जाएगा 54d + 15d, और ये इधर आएगा 155 - 9, सो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 145 आई थिंक, है ना, 145 बचेगा, हाँ 45 नहीं 146, 46 47 44 यस, और यहाँ पे हो जाएगा 54 + 5 59 + 10 56 59 सॉरी 69 5 4 9 अच्छा 69d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 146 डिवाइड बाय 69। अब ये कैंसिल होता है कि नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। 2 नंबर 18 3 4
4, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है? सो बेटा इसको ऐसे ही रखो और इसको ऐसे ही हम पुट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे ही पुट कर लेंगे किसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं. सो m प्लस 1 टाइम d इक्वल टू 30, कुछ ऐसी इक्वेशन थी मेरे पास. m प्लस 1 टाइम, यहाँ पे देखिए m प्लस 1 टाइम d इक्वल टू 30. सो द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ m, सॉरी, हाँ. सो m प्लस 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन d एंड m इज इक्वल टू 30 अपॉन d माइनस 1. ओके बेटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे d की वैल्यू. सो 30 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 146 अपॉन 69 माइनस 1. सो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 69 डिवाइड बाई 146 माइनस 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 30 0 2070 आ रहा बेटा मल्टीप्लाई है, ये 0 आ गया. 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20 माइनस 146 डिवाइड बाई 146. इसको करेंगे बेटा कैलकुलेट, तो वैल्यू ऑफ m हमें मिल जाएगा. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 17. The question number 17, a man starts repaying a loan of as first installment of rupees 100. If he increase the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? So बेटा एक आदमी जो है रिपे कर रहा है लोन को विद द वेरी फर्स्ट अमाउंट 100 रुपीज़. सो फर्स्ट अमाउंट मीन्स फर्स्ट नंबर है ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100. अब हर महीने कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, इस महीने अगर 100 रुपये दे रहा है, अगले महीने 105 देगा, फिर उसके अगले महीने क्या देगा 110. तो 5-5 रुपये का क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है इंस्टॉलमेंट में. तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा 5. सो अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30. ठीक है, सो A30 इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 29D. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A एंड D हियर. So 100 plus 29 multiply with 5, that is 100 plus 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 plus 4. ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 245 है ना. कितना पे करेगा वो 245 रुपीज़ पे करेगा अपने 30th अमाउंट पे. ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट में. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ बेटा द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री. सो डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री. इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, सो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल इज द फर्स्ट एंगल विच इज ए 120 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एन. तो बेटा किसी भी पॉलीगन के अंदर, ठीक है, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉलीगन है, सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ABC. ठीक है, कितने साइड हैं इसके बेटा 3 साइड हैं. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू होता है फार्मूला बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 टाइम 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. सो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल में, देखते हैं क्या ये फार्मूला सही है. सो नंबर ऑफ साइड्स कितने बेटा यहाँ पे 3, तो कितने आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 3 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, दैट इज 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना मिला मुझे 180 डिग्री है ना. और 180 डिग्री होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल. सो हम करेंगे यहाँ पे सम वाले फार्मूले को किसके इक्वेट कर देंगे n-2 टाइम 180 के, एंड फ्रॉम वेयर वी विल इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो n-2 टाइम 180 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, फार्मूले से कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. नाउ n-2 टाइम 180 डिग्री इक्वल टू n/2
2 टाइम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया है 120, सो 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 डिग्री, ठीक है। नाउ ये दो का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n माइनस 2 टाइम इंटू 18 टू जा 36, 360 डिग्री इज इक्वल टू n, 12 टू जा 24, सो 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, जो हो जाएगा n टाइम विद इन ब्रैकेट 240 माइनस 5 दैट इज 235, है ना, एंड प्लस 5n, ठीक है। तो हो जाएगा 235n प्लस 5 टाइम n स्क्वायर एंड हियर इन लेफ्ट साइड 360n माइनस 720। अब क्या करेंगे बेटा, ये सारा अमाउंट जो है इस सारे अमाउंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 टाइम n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n एंड प्लस 720 इक्वल टू 0। अब करना क्या है बेटा, इस इक्वेशन को करना है मैं सॉल्व, ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना मैं, इस इक्वेशन को कर लेना हमें सॉल्व, है ना। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर से देख ले रहा हूँ 5n माइनस 5, ठीक है, ठीक है। इधर तो 5n स्क्वायर 235 माइनस ये 300 नहीं है 360 है, ओके, माइनस 360 तो कितना बचेगा बेटा, 35 में से 360 जाएंगे तो 60 तो ये हो गए 35 5 40 40 60 60 120 125 माइनस 125 एन, और यहाँ पे कितना है 720, कुछ और तो माइनस होगा नहीं ना, हाँ, प्लस 720 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5, वी गेट n स्क्वायर माइनस ये 12 5 टू जा 10 एंड 5 5 जा 25, 25 टाइम n प्लस 5 1 जा 5 5 को 20। नाउ फैक्टराइज इट, सो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। Taking n common we get n minus 16 and here taking minus n common we get n minus 16। So बेटा दो फैक्टर आ रहे हैं n minus 16 and n minus 9 इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू एदर 16 और 9, ठीक है। दो वैल्यू यहाँ पे n की आ रही है, नंबर ऑफ साइड्स या तो 16 होंगी या क्या होगा 9 होंगे, ठीक है। तो वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड in my next video I will discuss about geometric progression. Thank you for watching the video. Have a nice day.